या अय्युहल मुज़म्मिल कुल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। तर्जुमा। है चादर में लिपटने वाले, रात का थोड़ा हिस्सा बाकी रात में इबादत के लिए खड़े हो जाया करो। रात के आधे हिस्से या आधे हिस्से से कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज्यादा कर लो और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Thank you so much, Professor Rashid. Now over to you, Dr. Simab Zafar. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा आई एम डॉक्टर सिमाब जफर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एजेके मेडिकल कॉलेज में। जैसा कि आज का हमारा सेमिनार है सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एचपीवी वैक्सीन, तो हमें पता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वुमेन इशू है। इसके लिए जो है मतलब वैक्सीन स्क्रीनिंग और इससे जो है हम इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आज के जो इस सेमिनार का मकसद है उसमें हमने जो है इन्हीं चीज़ों की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना है, इसकी प्रिवेलेंस को देखना है, जिसके लिए हमारे पास जो है हमारे बहुत ही वेल नोन और रिनाउंड हमारे स्पीकर्स हैं, जिसमें डॉक्टर समीना नूरीन, नईम, डॉक्टर नूरीन जफर, they are from WHO, Professor Shafaq Hanif, Dr. Noshina, Dr. Mariam, and they are from AJK Medical College, and Dr. Noshina and Dr. Shafaq are associate professor. I first of all will invite Dr. Noreen Zafar. She will talk about Dr. the Simab and Dr. Zora Khanam hai. Zora Khanam is the principal of Services Institute of Medical Sciences. Yes, sir. Sorry. Dr. Zora Harnam, she is Principal Services Institute of Medical Sciences. Professor Mulazam Hussain Bukhari, Principal AJK Medical College, and Professor Salma Kundi, she is Principal Women Medical College from Ahmedabad. So I first of all मेरा ख्याल है समाब पहले ओवरव्यू देना चाहिए ना, तो पहले मुझे कर लें। First of all, Dr. जी जी सर, सर ने सीक्वेंस स्टार्ट किया था कि डॉक्टर शफक को ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर टू यू डॉक्टर शफक। ठीक है सर। मैं अपनी जो है ना वो स्क्रीन शेयर करूंगी फिर साथ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सब को आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है ना? स्लाइड मोड पे ले जाइए, इसको स्लाइड मोड पे कर लें। ये जो एक कप सा बना हुआ है नीचे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे करें क्लिक। हाँ बिल्कुल। ओके, एक दफा फिर करें। नहीं हो रहा ये इसका ना जूम के साथ शायद होगा नहीं। चले हो गया, हो गया ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। यस एवरीवन। ठीक है। मैं डॉक्टर शफक हूँ, जैसे डॉक्टर समाब ने बता दिया। हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजेकेएमसी मेडिकल कॉलेज। आज का ये सेमिनार जो है वेबिनार हम लोग कर रहे थे, एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर। मेन इसका जो है थीम है वो ये है। तो मैंने सिर्फ देना है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर इज इम्पोर्टेंट। तो cervical cancer is the fourth most common cancer in women worldwide. Cervical cancer is fourth most common cause of death in women. Cancer related causes जो है उनमें fourth most common cause है। In 2020, 604,000 women were diagnosed with cervical cancer worldwide. And about 342,000 women lost their lives to this preventable disease. The main focus is on because it is a preventable disease.
cervical cancer is one of few cancers which can be prevented. Almost 85% of new case and almost 90% deaths of cervical cancer occur in low middle income countries. Different interventions and health behavior change provide an effective base for cervical cancer prevention. And early detection can play a key role in reducing the associated morbidity. Now coming to Pakistan, in 2020, an estimated cervical cancer incidence was 6.1 in 100,000 women, and 4,000 deaths occurred due to cervical cancer. And in journal of CPSP, they have conducted a study and created a registry of Pakistan in collaboration with different association for Shaukat Khanum and Shifa International and Punjab and Sindh and other cancer registries. And they said that cervical cancer is among top 10 cancers among females of all ages, accounting for 4.17 cases. That is fourth most common cancer in Pakistan in females, just like worldwide. Coming to Kashmir, no proper data available because most are referred to Rawalpindi, Abbottabad, or sometimes Lahore and Karachi. So verbally, I contacted different centers to take the data of Muzaffarabad and these districts, Bagh districts, which are referred over there. And they said that 14 cases were entertained from this area in Noori Hospital from January 2023 till now. And 28 cervical CA patients were entertained in gynecological oncology unit of Abbottabad. In these 28 cervical CA patients, some were from KPK also, but according to the oncologist, majority was from Kashmir. Coming to our small setup in colposcopy in Ambor Hospital, Muzaffarabad, we started it in February 2022. Usually we do the colposcopies and the pap smears in symptomatic patients, and guided pap smear, if guide us, then we go to colposcopies. And each month we do these colposcopies about 6 to 11, and till now 157 total cases of colposcopy were done, in which we picked 3 cases of cervical CA from February 2022 till now. Again, WHO say in 2013, WHO said that it is estimated that by 2030, about 500,000 women will die each year from cervical cancer. 95% of the deaths will occur in low and middle income countries. So WHO targeted that it should targeted it to eliminate the cervical cancer. In 2020, the World Health Assembly passed a resolution and adopted a strategy aimed at eliminating cervical cancer worldwide as a public health problem. The goal strategy identifies that cervical cancer would be no longer a public health problem when all of the countries in the world reach annual incidence rate of 4 cervical cancer per 100,000 women. Now, going to 2020 to 2030 acceleration planning elimination is vegan is a world without cervical cancer. And in it, 90, 70, 90 is decided by the WHO, according to which these targets are for 2030. 90% of girls fully vaccinated with HPV vaccine by 15 years of age. 70% of eligible women screened at least twice in their lifetime, and 90% managed appropriately. So reducing the mortality from cervical cancer 30%. Cervical cancer is due to persistent infection with high-risk HPV transmitted through sexual contact. I will not go into the details of HPV and its vaccination and the details of cervical screening and details of cervical CA propagation, because my co-speakers will highlight these things.
I will only say that risk factors for cervical cancer are early onset of sexual activity and multiple sexual partners, cigarette smoking, low socioeconomic status, use of oral contraceptives from early age, absence of an immunocompromised states, including HIV, and importantly, absence of vaccination against HPV and screening against cervical cancer. In communities where there is no vaccination and there is no screening program running, the incidence of cervical cancer increases. So I will go towards the end of my talk by saying that January is Cervical Cancer Awareness Month. So we should aware that vaccinate early, regular screen, and treat for those who need it. And time for action in our community in Pakistan and Kashmir is that knowledge is power. See the big picture. Healthcare providers should think about cervical cancer. Youth groups, parents, and schools should get awareness. Organizations and should be involved, and contact should be done with legislators and governing bodies. Way forward for me in Muzaffarabad and me and my team is to establish a cervical screening center in Muzaffarabad. HPV vaccination should to be started in the young girls, and multiple strategies to create awareness in healthcare workers, including emphasis on per speculum examination of cervix. I said this that per speculum examination of cervix is necessary because I saw and I heard from different oncologists who are doing cervical cancer surgeries that big masses are not seen by the simple medical officers, lady health workers, and nurse staff, to whom these patients, these poor patients, report repeatedly early in the cancer stages, in early with the vaginal discharges and with spotting, postcoital bleeding, but they never bother to see the cervix. How is the cervix? So we should create healthcare awareness in healthcare providers that they should at least look at the cervix and focus on the cervix. I will end my talk on this and to Semab, Dr. Semab. Thank जी you so मेरी much. गुजारिश थी कि मोस्ट ऑफ द डाटा, मोस्ट ऑफ द अवेयरनेस वी आर क्रिएटिंग, हम अपने आवाम को दे रहे हैं और वो इंग्लिश नहीं जानते। आज के वेबिनार की गुजारिश ये थी कि अगर आप अपने अल्फाज में, वो लोग जो बाद में हमारी वीडियो सुनेंगे वो लेमैन होंगे, अब खामोश रहना। तो अगर उर्दू में कर लें तो ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिसके टर्मिनोलॉजी मेडिकल नहीं आती। तो गुजारिश ये अच्छा होगी सर। कि हमारा अगला वेबिनार जो है अपनी लैंग्वेज में हो ताकि लोगों को हम कुछ ना कुछ मैसेज बता सकें। बहुत शुक्रिया। सर मैं सिमाब, ओवर थोड़ा टू सा फिर डॉक्टर उर्दू सिमाब। में मैं थोड़ा सा फिर बता देती हूँ जी जी। कि जो लबे लबाब है मेरी सारी प्रेजेंटेशन का, वो ये कि सर्वाइकल कैंसर इमर्जिंग कैंसर है और प्रिवेंटेबल कैंसर है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि ये ऐसा कैंसर है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं रोक सकते अपनी हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, वैक्सीनेशन, एचपीवी वैक्सीनेशन से और स्क्रीनिंग से। तो ये बहुत इनिशियल स्टेज पे अगर पता चल जाए तो जल्दी ट्रीट हो जाए तो फिर इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमारा जो एम्फेसिस है, हमारी जो इस वेबिनार का मकसद है वो ये कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और एचपीवी वैक्सीनेशन की अवेयरनेस लोगों को दी जाए, ताकि वो और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो ये देखें, इस पे सोचें कि अगर विजाइनल डिस्चार्ज के साथ पेशेंट आ रही है या उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है या उसको स्पॉटिंग हो रही है, तो जरूर ये सोचें कि सर्विक्स का कोई मसला हो सकता है, उसको देखें जरूर। और अगर देखने में वो नॉर्मल भी नजर आता है और डिस्चार्ज सिंपल चीजों से या उससे नहीं ठीक हो रहा, तो जरूर रेफर करें या उसको आगे इन्वेस्टिगेट करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमाब। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर शफक। डॉक्टर शफक ने बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइकल कैंसर का जो है ओवरव्यू दिया है और एम्फेसाइज किया है इन्होंने कि एग्जामिनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सीएस सर्विक्स की डायग्नोसिस में। तो इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो जरूर सर्विक्स का स्पेकुलम एग्जामिनेशन करें। तो इसके बाद में डॉक्टर नौशीना से रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर नौशीना जो है वो हमें स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर के मतलब बताएंगी।
डॉक्टर नौशीना हमारे सीएमएच में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनी है, और माशाल्लाह ये मुजफ्फराबाद की एक नामवर किस्म की गायनकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर। जैसे हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शफक हनीफ हैं। इन दोनों की वजह से इदारे को चलाती हैं, एम्स को, और ये चलाती हैं सीएमएच को। तो डॉक्टर शफक के बाद डॉक्टर नौशीना। जी डॉक्टर नौशीना, बाकी लोग अपने अपने माइक म्यूट कर दें। जी डॉक्टर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Nice presentation by Dr. Shafaq जिसमें उन्होंने एक ओवरव्यू दिया, और अब इसी को आगे प्रोसीड करते हुए आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा स्क्रीनिंग पे बात कर लें कि क्या क्या मेथड हैं। तो मैं भी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी ताकि मैसेज को डिलीवर करना इजी हो जाए। शेयर कैन एवरीबॉडी सी? जी आपका जूम नजर आ रहा है? आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें मैडम। जी प्रेजेंटेशन मैंने शेयर की है, नजर आ रही है? नहीं, ये आपके हमें सिर्फ जूम नजर आ रहा है। अच्छा, आप ये जो एरो है ना, उसके ऊपर क्लिक करें, ग्रीन सा, यहाँ पे जाएं और उसके ऊपर अपने प्रेजेंटेशन को क्लिक कर लें। जी हो गई। अब चलें। आप नीचे स्लाइड मोड पे चले जाएं और नीचे से कप जो बना है उसके ऊपर करें। हाँ, गुड, एक्सीलेंट। तो स्टार्टिंग विद माय प्रेजेंटेशन जो है स्क्रीनिंग मैडम उर्दू में सर्वाइकल लैंग्वेज कैंसर। उर्दू में रखना। जी जी। ठीक है जी, मैं मीडियम। तो बेसिकली मकसद या पर्पस हमारा ये है कि एवरीबॉडी जो कि वेबिनार को अटेंड कर रहा है उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वजह क्या है कि हम क्यों कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को स्क्रीन करना चाह रहे हैं, क्या क्या मेथड्स हैं जिससे हम स्क्रीन कर सकते हैं, और रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, डब्ल्यूएचओ की क्या रिकमेंडेशंस हैं, हमारी लोकल क्या रिकमेंडेशंस हैं, और आरसीओजी की क्या रिकमेंडेशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री के 1950 के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम पैप टेस्ट कहते हैं, इसकी वजह से अपनी मोर्टेलिटी को 70% रिड्यूस कर दिया है। और नाउ जो उनके हार्डली जो केसेस हैं वो 7% ऑफ ऑल फीमेल मेलिग्नेंसीज जो है वो रह गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी आर हायर अप जोन पे, और अभी हमारे मोर देन 24% जो है वो केसेस स्टिल अनट्रीटेड हैं। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सर्विक्स को हम स्क्रीन करें पाकिस्तान में? पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, थोड़ा सा डाटा देना चाहूंगी, 59.4 मिलियन अप्रोक्सीमेटली जो 16 to 70 ईयर्स में हैं, दे आर एट द रिस्क कि उनमें से ये सर्विक्स डेवलप हो। और करंट एस्टिमेट्स पे 5233 वुमेन्स दे आर डायग्नोज्ड, और उसमें से ऑलमोस्ट 2876 जो है हर साल में उनकी डेथ हो रही है। और उसमें से ओनली 3.4% वो खवातीन हैं जो अर्बन पॉपुलेशन में हैं और जो कि स्क्रीन हो रही हैं। सो अगर हम इन सब को स्क्रीन कर लें तो इट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल कैंसर। सबसे अच्छी बात और पॉजिटिव बात इस कैंसर की ये है कि सर्विस एक ऐसी जगह पे है, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे उसकी एग्जामिनेशन, जैसा कि डॉक्टर शफक ने जोर दिया कि हर लेवल के बंदे को स्पेकुलम एग्जामिनेशन और सर्विस को देखना आना चाहिए, क्योंकि इसकी एनाटॉमिकल एक्सेसिबिलिटी ईजी है जिसको हम डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं। सो इट इज़ मच ईजी कि हम इसको स्क्रीन करें और कैंसर को प्रिवेंटेबल बनाएं। जो प्रिवेंशन है इट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑब्वियसली हम रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे जो इस कैंसर के हैं, जो मेरा ख्याल है अगली किसी की टॉक में आएगा, मैं किसी को स्पीकर की, और काउंसिल करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकेंगे। और अगर कैंसर एक्सटेंड हो गया है या फैल गया है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। सो कमिंग टू द स्क्रीनिंग मेथड के क्या क्या तरीके हैं जिससे हम सर्विक्स को स्क्रीन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सर्विक्स के मौजूद जो अंदर हम 2-3 तरीकों से सेल्स को लेते हैं और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं। उसमें से एक तरीका है जो कि है पैप्समेयर। जो पैप्समेयर है इसमें कन्वेंशनल है कि सर्विक्स के अंदर से जो है एक स्पैचुला पे
जो है उसके सेल्स को लिया जाता था और स्लाइड पे माइक्रोस्कोप पे नीचे स्टडी किया जाता था कि उसमें कोई एब नॉर्मल सेल तो नहीं। अभी यही चीज जो है थोड़ी सी आगे प्रोग्रेस कर गई है कि हमारे पास लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी आ गई है। और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं सामने, ये ब्लू कलर का और व्हाइट का, इट इज द ब्रश, जिससे ये और भी इजी हो गया इसको लेना। और इसको अब हम ब्रश से लेके और इसको जो हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप प्लस जो है एचपीवी टेस्टिंग, वो हमारी एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में उसकी डिटेल है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन एचपीवी का वायरस यहाँ मैं जरूर बताऊंगी कि एचपीवी का वायरस है जिसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। ऑन्कोजेनिक है, मींस कि जब वो बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो वहां पे लोकली प्रोलिफरेट करके जो है वो कैंसर करते हैं। फिर विजुअल इंस्पेक्शंस हैं और कॉल्पोस्कोपी है। ऑब्वियसली स्क्रीनिंग हमारी लाइफ को सेव करेगी। सैंपल कलेक्शन जो है आइडियली इट इज फ्रॉम द स्केमोकोलमनर जंक्शन। इसकी जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है 44 to 78%, वाइल स्पेसिफिसिटीज अप टू 96%। और जो डिफरेंट जो कन्वेंशनल मेथड और लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी है उसमें डिफरेंस ये है कि जो लिक्विड वेस्ट साइटोलॉजी है इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे सेल जो हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन जोन से कलेक्ट किए जाते हैं। इट इज सुपीरियर देन कन्वेंशनल पैप स्मीयर। और इसके साथ जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को भी टेस्ट किया जाता है और इसकी सेंसिटिविटी से जो है ना कैंसर की डिटेक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और पर्टिकुलर हो जाती है। और इसको फिर आगे हम पैथोलॉजिकली 2 स्टेजेस सिस्टम्स के तहत बेथिस्टा या नाइस सिस्टम में डालते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी चेंजेस आई हैं सेल के अंदर वो माइल्ड रिस्क है कैंसर का, मॉडरेट रिस्क है या बहुत सीवियर है, या ऑलरेडी वो जो है वो पेशेंट कैंसर की है। और इसी तरह एचपीवी की चार्टिंग से भी हमें पता चल सकता है कि अभी हमने इसको, अगर तो वो नेगेटिव है तो हम उसको 2-3 साल के बाद फॉलो करते हैं। अगर उसमें कोई इन्फेक्शन आती है तो हम उसको ट्रीट करके दोबारा रिपीट करते हैं। विजुअल टेस्टिंग जो है, विजुअल टेस्टिंग हो सकती है विद एसिटिक एसिड which is called as VIA, which is preferable in low resource countries. Then visual inspection with Lugol's iodine and simple visual inspection. एंड वाया जो है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बहुत सिंपल है। इसमें हमने जस्ट सर्विक्स को क्लीन करके 3 to 0.5% एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका अपनी जबान में कहते हैं, वाइट विनेगर, और 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। और नतीजा क्या होगा कि जो एब नॉर्मल टिश्यूज हैं वो एसिटो वाइट हो जाएंगे, जो कि सस्पिशन देंगे कि अंडरलाइंग जो पैथोलॉजी है इट कुड बी मैलिग्नेंट। इसमें जो है इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये ऊपर वाली जो सर्विक्स है जो अबाउट पिक्चर में दैट इज नॉर्मल, और नीचे में जो है ये सारा जो सर्विक्स का नॉर्मल एरिया ये वाइट हो गया है। और इसकी फिर थिकनिंग कितनी है, कितना स्ट्रोमा इन्वॉल्व है, इसकी कितनी ज्यादा डिमार्केशन है, इट विल इंडिकेट द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। और जो इसी तरह वाया पॉजिटिव हम उसी को कहेंगे कि जिसमें जो एब नॉर्मल एरियाज हैं स्केमोकोलैमिनर जंक्शन पे वो एसिटो वाइट हो जाएंगे आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ विनेगर या एसिटिक एसिड। और ऑब्वियसली जो वाया नेगेटिव होंगे उसमें कोई एसिटो वाइट लीजन्स नहीं होंगी, नेबोथियन सिस्ट नजर आ सकती हैं, पॉलिप नजर आ सकते हैं, या एसिटो वाइट एरिया फार अवे फ्रॉम द स्केमोकोलैमिनर जंक्शन होगा। फॉलो अप में अगर तो वाया नेगेटिव है तो हम इसको 5 ईयर के बाद स्क्रीनिंग को करेंगे। अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी स्मेयर आता है तो उसको ट्रीट करने के बाद 6 मंथ्स के बाद रिपीट करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो हम इसको फौरन से कॉल्पोस्कोपी के लिए रेफर करेंगे, जहां ये डायग्नोज हो जाएगा कि ये सीए सर्विक्स है कि नहीं है, और अकॉर्डिंगली फिर ये ट्रीट हो जाएगा। एडवांटेजेस जो हैं, एसिटिक एसिड की टेक्निक है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है। और डिसएडवांटेजेस यही है कि ओल्डर वुमेन में स्केमोकोलैमिनर जंक्शन चूंकि थोड़ा चेंज हो जाता है तो उसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलरली विजुअल इंस्पेक्शन विद ल्यूगल्स आयोडीन, इसका भी कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब आयोडीन का ड्रॉप डालते हैं सर्विक्स के ऊपर एज एन स्क्रीनिंग फॉर टू रूल आउट द कि कोई कैंसर तो नहीं है, तो जो उसमें नॉर्मल सेल हैं वो आयोडीन को टेकअप कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्लाइकोजन होती है, और जो एब नॉर्मल सेल्स होते हैं, मेलिग्नेंट सेल्स हैं, वो उसको टेकअप नहीं करते। तो पेशेंट जो है वो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है और उसको फर्दर हम कॉर्पोस्कोपी के लिए भेज देते हैं। और इसी तरह डिफरेंट टेक्निक्स यही हैं कि पैप स्मेयर हो गया जिसकी सेंसिटिविटी
जो है 86% तक था, स्पेसिफिटी 62 है, फिर लिक्विड बेस हो गया जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, फिर HPV जो है डिटेक्शन है, और वाया है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स और विद ड्यूगल्स आयोडीन। आर चैलेंजेस, हमारे चैलेंजेस क्या हैं कि वी हैव लैक ऑफ अवेयरनेस, एजुकेशन, जैसे डॉक्टर शफक ने कहा, लैक ऑफ ट्रेनिंग। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे साथ की जो हैं वो एग्जामिन नहीं करते, उसको देखते नहीं हैं, उनमें एजुकेशन नहीं है कि प्रिवेंटेबल है। अनफॉर्चुनेटली 300,000 वुमेन जो हैं हर साल सी सर्विक्स से उनकी डेथ हो रही है, और मेजॉरिटी मोर देन 80% दे बिलोंग टू लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। रिकमेंडेशंस इसकी WHO टारगेट है कि रिड्यूस करें हम एनुअली टू 4 और फ्यूअर देन 100,000 को, और 90% जो है गर्ल्स उनको वैक्सीनेट होना चाहिए, और 70% को हाई क्वालिटी टेस्ट से बाय द एज ऑफ 35 to 45 पीक एजेस में डिटेक्ट होना चाहिए, और 90% को रिसीव करनी चाहिए ट्रीटमेंट। ये हमारी RCOG की रिकमेंडेशन है कि अंडर 25 ईयर कोई इन्विटेशन नहीं, वहाँ पे पूरा ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। 24 से जो है 49 ईयर्स तक हर 3 साल के बाद वो खवातीन को बुलाते हैं और उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट CS सर्विक्स, और 50 to 64 तक वो 5 ईयर्स के बाद करते हैं, और मोर देन 65 अगर प्रीवियस स्क्रीनिंग नॉर्मल हो तो फिर उसको स्क्रीन प्रोग्राम से आउट करते हैं। और इसी तरह HPV के लिए कि अगर HPV ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव हो तो फिर हम आप उसको रूटीन रिकॉल देते हैं, अगर वो पॉजिटिव हो तो फिर उसकी हम कॉल्पोस्कोपी कराते हैं, और अगर सस्पिशियस हो तो दोबारा रिपीट करते हैं 12 मंथ्स पे। और जो हमारी लोकल नेशनल गाइडलाइंस हैं दे से जो SOGP की रिकमेंडेशन है कि रेगुलर पेप स्मेयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी या वाया कोई भी स्क्रीनिंग मेथड आफ्टर 3 to 5 ईयर्स ऑफ मैरिज होना चाहिए, 3 to 5 ईयरली इंटरनल पे। वाया के लिए हमें अपने सारी जो टीम है उसको ट्रेन करना चाहिए, और एटलीस्ट 1 पेप स्मेयर या वंस जो है HPV टेस्टिंग खवातीन की बाय द एज ऑफ 35 ईयर्स एटलीस्ट 1 टाइम होनी चाहिए, और एट 65 पे हमें इसको स्टॉप कर देना है। फिर ये वैक्सीन है, आई थिंक इसके बारे में आगे डिटेल से बात होगी, और आई कंक्लूड माई टॉक दैट प्रिवेंशन इज इन योर हैंड। ये हमारे हाथ में है कि हमने खवातीन को बनने से बचाना है या हमने इसको प्रिवेंट करना है कि नहीं करना। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर नौशीना। डॉक्टर नौशीना ने जो है बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पे जो है वो इस पे एम्फेसाइज किया है कि अर्ली डिटेक्शन अगर सर्वाइकल कैंसर की करेंगे हम तो उसकी जो है ट्रीटमेंट भी इजी और सर्वाइवल रेट भी अच्छा है। तो आपने जो तरीके बताए हैं कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे हम लोग लो रिसोर्स सेटअप से हमारा जो है ताल्लुक है, तो हमारी विजुअल इंस्पेक्शन एटलीस्ट स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन और विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड जो है वो एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम जो है सस्पिशियन लीजन्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और फर्दर जो है बायोप्सी और जो है उस पे हम इसकी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट जो है अर्ली स्टेज पे करके खवातीन को इस डिजीज की मिजरी से बचा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नौशीना। सिमा, पैप स्मेयर को भी इसको हम शेयर करें बायोप्सी से पहले। पैप स्मेयर एक बहुत अच्छा स्मेयर रहता है जिसको हम बड़े जल्दी डिटेक्ट कर जी सकते हैं। जी सॉरी सर, वो पेप्समेयर जो है, पेप्समेयर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी, जो कि वर्ल्ड वाइड जो है उन्होंने इसके इंसिडेंस को रिड्यूस किया है वो विद द यूज ऑफ दिस स्क्रीनिंग प्रोग्राम और उसके साथ HPV टेस्टिंग। तो जो हम हमारे कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक प्रॉपर स्क्रीनिंग ही एस्टेब्लिश नहीं हो सकी, जिसकी वजह से डेटा भी इतना एक्यूरेट नहीं है। और दूसरा जो पेशेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो लेट स्टेजेस में होती है। मोस्टली जो पेशेंट डिटेक्ट होते हैं वो एडवांस डिजीज के साथ होते हैं, जिस वक्त उनकी ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होती है और उनका सर्वाइवल भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए जो है अब नेक्स्ट जो है सर्वाइकल स्क्रीनिंग के साथ जो HPV इन्फेक्शन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज है इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस CS सर्विक्स, और इस ये इन्फेक्शन जो है वो मतलब एटलीस्ट 15 to 20 years लेते हैं फ्रॉम प्री कैंसरस कंडीशन टू डेवलप इनटू फ्रैंक मैलिग्नेंसी।
तो इसके बारे में जो है डॉक्टर नूरीन जफर को मैं अब इनवाइट करूंगी कि वो एचपीवी इन्फेक्शन के ऊपर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दें। डॉक्टर नूरीन जफर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सिमाब और प्रोफेसर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं और मैडम नरीन, आपने सादा अल्फाज में हमें बताना है कि ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, ये कैसे ठीक है। फैलता है, इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके क्या खतरात आगे लायक होते हैं, ताकि हमारी आवाम आपकी ज़बान में समझे। आप WHO के प्लेटफॉर्म पे बैठी हैं, आपका पैगाम बहुत ज़्यादा मौसर होगा। बहुत शुक्रिया मैडम। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और सबसे पहले तो आईड लाइक टू कंग्रेचुलेट दोनों हमारे स्पीकर्स, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उन्होंने अपने टॉक्स जो हैं वो डिलीवर किए हैं। और ये जो बात हुई थी शुरू में मुजफ्फराबाद में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके लिए बस मैं ये अर्ज करना चाहती थी कि जो हेल्प ऑन अ पर्सनल बेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस जो हमारी अपनी है, उस पे जो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूंगी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और हम सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि ये इसको क्या चीज़ कॉज करती है। हमें पता है कि पहली तब्दीली से कैंसर बनने तक 15 से 20 साल का अरसा है। तो जैसे डॉक्टर नौशीना ने भी कहा कि हम अगर चलें रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं तो कम से कम एक मरतबा अगर हम अपनी ख़वातीन का मुआयना कर सकते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ा सदका जारिया है। दूसरा, बिफोर आई स्टार्ट माय टॉक प्रोफेसर साहब आप इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस सारे में हमें एजुकेशनल रिसोर्सेज और गाइडलाइंस वो सारी बहुत दरकार होती हैं। तो मैं अल्लाह के फजल से जो इंटरनेशनल पैपिलोमा वायरस सोसाइटी है, ये पैपिलोमा वायरस जो कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर, उसकी कंट्री एम्बेसडर हूँ। और उनसे नेगोशिएट किया गया कि हमारे लोगों के लिए उनकी फ़ीस भी उन्होंने कोई 10 गुना कम करके $9 रखी है मेंबरशिप की साल के लिए। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जैसे AJK मेडिकल कॉलेज या CMH डॉक्टर साहिबा का या जैसे सीनार है, वो अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे करते हैं तो उसमें फिर वो 10% और कम कर देते हैं। तो मैं ये डॉक्टर सिमाब का मेरे पास नंबर है, मैं उनके साथ ये डिटेल्स शेयर कर लूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे जो हमें अनसर्टेनिटी होती है ना कि पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेटेस्ट उनके वेबिनार्स उनकी वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साल अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया दोबारा से। और मैं बात करूँगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम आम तौर पे मेडिकल के लोग HPV कहते हैं। तो ये जो वायरस होता है ये तकरीबन 200 से ज़्यादा इसकी किस्में हैं, लेकिन अंदाज़न 40 किस्में वो हैं जो हमारे ये तौलीदी जो निज़ाम है ना उसके कैंसर से मुंसलिक हैं। तो कुछ इसको हम कहते हैं हाई रिस्क, कुछ को कहते हैं लो रिस्क। तो जो हाई रिस्क इसकी टाइप्स हैं उसमें 16 है, 18 है, 31 है, 35 है, और बाकी सारी जो हैं वो लो रिस्क टाइप्स हैं। और हाई और लो रिस्क इसको इसलिए हम कहते हैं कि हाई रिस्क वो हैं जो कैंसर से मुंसलिक हैं, चाहे वो रहम के मुंह का कैंसर हो जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, या बाहर की जिल्द का हो वल्वर जिसको कहते हैं, या पखाने वाले रास्ते का एनल कैंसर, और उसके अलावा जो गले का जो पिछला हिस्सा है ओरोफिरिंजियल कैंसर, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। अब इसका सबसे बड़ा मसला ये है HPV का कि इसका पता नहीं चलता कब किसको होता है। इट्स अ साइलेंट डिजीज। और दूसरा मसला ये है कि बहुत सी और वायरस की जो टाइप्स हैं उनकी तरह हमारे पास इसका कोई तीर बहदफ इलाज नहीं है। सो हम ये कर सकते हैं कि इसकी डिटेक्शन उन लोगों में लाजमी करें, जैसे पहले दोनों वर्दी स्पीकर्स ने कहा, जिनमें कैंसर बनने का रिस्क है। अब होता क्या है कि तकरीबन 70% जो आदमी और ख़वातीन हैं उनमें ये कहीं ना कहीं ठहरा होता है। सबसे बड़ा मसला HPV से रिलेटेड ये है कि जैसे अगर कोई और वायरस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रुबेला का, तो उसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और जब एक दफ़ा इन्फेक्शन हो गई तो जिस्म उस वायरस को पहचान लेता है। HPV का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता। स्किन
और जो सरफेसेस हैं म्यूकोक्यूटेनियस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही अपना काम करता जाता है, उन सेल्स को इन्फेक्ट करता है और वो सेल्स जो हैं वो कैंसर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ब्लड में कोई मैसेज नहीं जाता तो हमारी बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बन पाती। तो होता ये है कि बहुत सी खवातीन में और बहुत से मर्द हजरात में ये खामोशी से रहता है, इन्फेक्शन होती है और फिर वो इन्फेक्शन कुदरती तौर पे जो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसके वसीले से वो क्लियर हो जाती है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर के अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटिक, HIV वाले, कोई इम्यूनो सप्रेशन ले रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग जिसमें एक्टिव और पैसिव दोनों आती हैं, कुछ तंबाकू की टाइप्स आती हैं, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, पुअर हाइजीन है, जो मज़ीद STIs हैं उनका कॉम्बिनेशन है, अर्ली फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, रिपीटेड प्रेगनेंसीज, ये सब चीज़ें जिसमें सर्विक्स की तोड़-फोड़ इन्वॉल्व होती है, उसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है या HPV जो है ये फिर अपना जो है वो एक गढ़ बना लेता है सर्वाइकल एपिथेलियम में और फिर वो इन्फेक्शन परसिस्ट करती है और उस इन्फेक्शन से जो चेंजेस आते हैं वो फिर 10 से 15 या 20 सालों में पहले हाइपरप्लेजिया होता है, थोड़ा सा डिस्प्लेजिया होता है, यानी एबनॉर्मेलिटीज आती हैं शक्लों में और उसके बाद फिर वो कुछ खवातीन में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब तरीका क्या है कि हम पिक कैसे कर सकते हैं? वो जो बात हुई पहले, HPV टेस्ट भी है, हमारे पास VIA भी है, हमारे पास पैप स्मेयर भी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर साहिबा ने सबसे पहले ज़िक्र किया था कि गायनेकोलॉजी में अब हमने मरीज़ों को एग्ज़ामिन करना छोड़ दिया है। सो अगर हम सर्विक्स एग्ज़ामिन करेंगे तो जो टिपिकल HPV चेंजेज़ हैं वो भी नज़र आ सकते हैं और उसकी बेसिस पे आप मज़ीद जो है ना वो खातून के टेस्ट करवा सकते हैं। अब कुछ लोगों में सिर्फ ये वॉट्स बनाएगा जेनिटल और स्किन के ऊपर, कुछ में सिर्फ ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 CIN करेगा और कुछ में ये सर्वाइकल कैंसर में चेंज हो जाएगा। और HPV की जो असल चीज़ जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं वो ये है कि HPV के लिए ऑलरेडी एक वैक्सीन अवेलेबल है और WHO का जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है उन्होंने अप्रैल 2022 में ये कह दिया है कि आपको जो नॉर्मल बच्चियां हैं 9 से 14 साल की, उनमें अगर आप एक मर्तबा भी वैक्सीन लगाते हैं तो आपका 16 और 18 जो 75% हासिल कर सकते हैं। और जो बड़ी वैक्सीन हैं गार्डेसिल जैसे जो 9 को टारगेट करती है तो उसका तो फिर इफेक्टिवनेस और भी बेहतर है। सो आई थिंक जैसे पहले बात HPV का सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है कॉन्सेप्ट उसको हम प्रोपोगेट ना करें, बल्कि हम इसके बारे में ऐसे बात करें कि ये औरतों में और मर्द हजरात में बहुत से कैंसर है, इसकी वैक्सीनेशन हमारी बच्चियों के लिए बेहद ज़रूरी है, काम हो जाता है। अगर उसके साथ ख़वातीन की एक मर्तबा ज़िंदगी में, एक मर्तबा मिनिमम ज़िंदगी, चाहे हम पैप स्मेयर करें, चाहे हम HPV टेस्टिंग करें, तो क्योंकि 99.7% कैंसर्स HPV रिलेटेड हैं सर्विक्स के, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो नई जनरेशन है, इट कैन विटनेस के सर्वाइकल कैंसर एक पुराने ज़माने की डिज़ीज़ है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर ताकि बाकी स्पीकर्स के लिए टाइम रहे और बहुत शुक्रिया इसके लिए और इंशाल्लाह ताला वी विल वर्क टुगेदर और जनवरी के लिए भी अगर आपकी कोई कैंपेन है जिसमें वी कैन हेल्प यू बिकॉज वी आल्सो रन रेगुलर कैंपेन्स एवरी ईयर तो प्लीज लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिमा। Thank you, madam. Dr. Noreen, can you hear, please? जी जी बिल्कुल।
थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें इसकी जो है एचपीवी इन्फेक्शन को बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वे में आपने एलोबरेट किया, जी इसका मोड ऑफ मुझे ट्रांसमिशन। आवाज आ रही है आपकी? जी जी, आई थिंक मेरा थोड़ा नेट का इशू है, आपकी आवाज लास्ट में बहुत कटना स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा सा इशू था मुझे अभी भी। ओ आई एम सॉरी। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हम तो फिर भी बात कर सकते हैं। जी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जो आपने अभी बात की कि आप हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगी जिससे हम अपनी मतलब हम अपडेटेड भी रहेंगे सारे नॉलेज से, मुजफ्फराबाद के लोग। मैं उस इंशाल्लाह वो जो आप शेयर बिल्कुल करेंगी तो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी ना, कि ताकि सब लोग अवेयर रहें, जी हमारी जो क्वेरीज हैं हम अपडेटेड रहें, न्यू रिसर्च या हम अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में कि जो हम कर रहे हैं क्या ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं इंशाल्लाह जो हमारा प्लान है कि हमने एस्टेब्लिश करनी है अब सर्वाइकल स्क्रीनिंग, और ये सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से हमें काफी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। और थैंक आप यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर नूरीन सफर ने जो है बहुत खूबसूरत तरीके से एचपीवी इन्फेक्शन का बताया, उसके ट्रांसमिशन के मोड में बताया, और यही चीज है कि इसका जो है सबसे बड़ा इशू यही है कि इसके सिम्टम्स कोई बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, माइल्ड सी इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, और वो बाकी डिपेंड करता है बंदी की इम्यून रिस्पांस पे कि वो जो है फर्दर जो है वो उसकी प्रोग्रेशन होनी है कि नहीं होनी है। तो इसके बाद जो है मैं बात करूंगी डॉक्टर समीना नूरीन जो कि हमारे साथ WHO की रिप्रेजेंटेटिव है। ये हमें बताएंगी इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन टू एलिमिनेट एचपीवी इन्फेक्शन। डॉक्टर नूरीन। जी मीना नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर समीना, सॉरी डॉक्टर समीना। जी जी, आ रही है स्क्रीन आपको नजर? जी आ रही है, आ रही है, जी आ रही है, आ रही है मैडम, आ रही है। जी। अच्छा जी, मैं अब ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करूंगी इसलिए कि काफी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। मैं एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट हाईलाइट करना जरूरी समझती हूँ। डू यू वांट मी टू स्टार्ट द कैमरा एज वेल? जी मैडम बिल्कुल, आपकी बात आवाज भी आ रही है और कैमरा भी आ रहा है, आप अपने उर्दू लैंग्वेज में हमें बताएंगी। जी ठीक है। मैं चाह रही थी कि मैं स्टार्ट करूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम सर्विकल कैंसर के बारे में कंसर्न्ड हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो केसेस हैं उसमें से एशिया यानी हमारे जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो 18.1 मिलियन केसेस में से 48% यहाँ पर प्रेवलेंस है। इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी और लो रिसोर्सेज और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैज समथिंग टू डू विद इट। इसलिए हमें पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हम बजाय इसके कि जिस तरह हमारे सारे कैंसर्स बहुत ज्यादा हैं उसी तरह हम सर्विकल कैंसर को अगर निग्लेक्ट करेंगे तो जो हमारे मुल्क में, और ये सारी चीजें अभी डिस्कस हो चुकी कि कितने नए केसेस आते हैं। और पाकिस्तान में जो एक बात हुई, जो मैं रिपोर्ट्स देख रही थी पंजाब कैंसर रजिस्ट्री की 2018 की, 19, 20, 21, 22, तो ग्रेजुअली पहले सर्विकल कैंसर जो है तकरीबन 10th पे था, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो हम थोड़ा सा इसकी डिटेक्शन बेहतर करना शुरू हो गए हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई है, तो उसकी वजह से या क्या है कि अब 4th पे हमने कहा कि हमारा ये सर्विकल कैंसर है। एचपीवी वैक्सीनेशन जो है वो जब से ऑथराइज हुआ वैक्सीन उससे तकरीबन आई कैन नॉट सी द स्क्रीन
69% जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी है। हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा ये मसला होता है कि लोगों में एप्रीहेंशन होती है कि पता नहीं ये इंटरनेशनल एजेंडा है और ये क्या मसला है। 2006 में जब HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई तो सब इंटरनेशनल कंट्रीज ने जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने वैक्सीन स्टार्ट कर दी और 2008 में तकरीबन US में स्टार्ट हो गई, 2006 में ही UK में स्टार्ट हो गई और बहुत ज्यादा उनके स्कूल्स बेस्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स किए गए। तो अब चूंकि डेवलप कंट्रीज ने बहुत ज्यादा वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर दी है, जैसे मैंने कहा 69 मेंबर स्टेट्स ने, WHO की मेंबर स्टेट्स ने इंट्रोड्यूस की है, तो जो है 60% सर्विकल कैंसर के केसेस उन मुल्कों में होते हैं जहां पर HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं की गई। तो दुनिया में अगर हम कहें कि जी हमने ये एक ऐसा वाहिद कैंसर है जिसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन अवेलेबल है और खवातीन का ये कैंसर जो है इस वैक्सीन की वजह से हम इस कैंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर हम देखें तो 2022 के स्टेटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि दुनिया में सिर्फ 21% लड़कियों को पहली डोज HPV वैक्सीन की मिली है। तो पहले तो ये प्रोटोकॉल था 3 डोजेस से स्टार्ट हुआ, फिर 2 डोजेस पे आया, फिर जो लेटेस्ट स्टडीज की गई उन्होंने बताया कि भाई तकरीबन 95% एफिकेसी है इवन सिंगल डोज की। तो ऐसे रिसोर्स सेटिंग्स जैसे कि हमारा मुल्क है जहां पर एक तो हम फॉलो नहीं कर सकते पेशेंट्स को कि हम उनको सेकेंड डोज के लिए फॉलो कर सकें, और प्लस ये कि पॉवर्टी है हमारे मुल्क में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि सिंगल डोज की जो हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है उनके साथ जो डिस्कशन चली है उसके मुताबिक सिंगल डोज हमारे मुल्क में राइज होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नेशनल EPI प्रोग्राम है वैक्सीन के लिए उसमें इंट्रोड्यूस करा दें और स्कूल बेस्ड हम इंट्रोडक्शन करें, इसलिए कि जो ये एज ग्रुप है जो 9 से 14 साल की बच्चियों में हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वो एज ग्रुप को हम टारगेट कर सकते हैं स्कूल्स के अंदर। लेकिन ये है कि सिर्फ स्कूल बेस्ड अगर करेंगे तो हम आउट ऑफ स्कूल बच्चियों को मिस कर देंगे, तो इसलिए हमें कैंपेन मोड में भी जाना पड़ेगा जहां पर फैसिलिटीज में भी करें और कैंपेन्स करें ताकि कोई ग्रुप मिस ना हो। हम क्यों कंसर्न है, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये जैसे मैंने कहा कि जो मैं पंजाब कैंसर रजिस्ट्री की रिपोर्ट्स देख रही थी उसके मुताबिक ये 10th पे था, जबकि आई एम सॉरी आई वंडर ये क्यों सेल्फ आगे हुई जा रहा है। 2015 से 19 में जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक 4th, और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 3rd कैंसर है। और हमने कहा कि ये अगर हम ये ऑटोमेटिक मोड पे चला गया है समहाउ, ये आप सबके पास भी इसी तरह मूव कर रहे हैं? जी कर रहा है आई एम सॉरी। जी जी मूव जी कर रहा जी है। जी वो बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमारी 0.5% पॉपुलेशन में जो है ये ऐसी जनरल पॉपुलेशन में भी हमें 16-18 HPV वायरस की स्ट्रेन्स मिली हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 200 से ज्यादा स्ट्रेन्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जिनके अगेंस्ट वैक्सीन इजीली अवेलेबल है वो 16-18 है। और हमारे यहाँ भी तकरीबन जो जितने हमारे सैंपल्स लिए गए, मुझे याद है 2006 में जापान ने हमारे मुल्क से सैंपल्स मंगवा के कहा कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बन रही हैं और पाकिस्तान में देखा जाए तो कौन सी वैक्सीन हैं, तो उस वक्त उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट करके देखा कि ये 16 और 18 ही स्ट्रेन सबसे ज्यादा हैं। मोर देन 88% जो हमारे इन्वेसिव कैंसर्स हैं ये स्ट्रेन अवेलेबल है। फिर अब ये है कि जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी, बहुत अच्छा डॉक्टर नौशीना ने एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए और स्क्रीनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनिंग के स्टेटिस्टिक्स बहुत पुअर हैं। अगर हमने जाके डाटा
कलेक्ट करने की कोशिश की है हॉस्पिटल्स में, तो उस लेवल पे जिस तरह हम कहते हैं कि हेल्दी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, स्क्रीनिंग सिर्फ तब की जाती है जब डाउट होता है, तो स्क्रीनिंग बहुत पुअर है हमारे मुल्क में। जो 3 साल का हम प्रोटोकॉल कहते हैं, 5 साल का, हमारी तो एवर स्क्रीनिंग भी 1% से ज्यादा नहीं है। इसी तरह जो हमारे एज ग्रुप्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो IR के जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर है, तो हमने देखा, और अभी भी मैंने डाटा जो आई एम ट्राइंग टू एनालाइज द डाटा, तो मैंने ये देखा है कि शौकत खानम के पास सबसे अच्छा डाटा अवेलेबल है और उन्होंने बहुत इसके डिटेल्स उनके पास हैं। बाकी जरा कैंसर रजिस्ट्रीज हमारी वेल मेंटेन नहीं है, तो इवन बहुत यंग एज में भी और 90 की एज में भी उनके पास डिटेक्ट हो रहे हैं सर्विकल कैंसर। यानी खवातीन जो है बिल्कुल यंगर एज ग्रुप में लड़कियां, और बल्कि इसी डाटा कलेक्शन के कैंपेन मोड में ही जब हम गए हैं डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज को विजिट किया है, तो द सरप्राइजिंग थिंग वाज के 20 साल की यंग लड़की जो कि अभी उसकी शादी हुई है, तकरीबन 9 महीने हुए हैं और वो डिलीवर होने के लिए आई है, तो उसका फुल फ्लैच वॉट्स थे और उसको चेक किया तो वो HPV पॉजिटिव थी। तो दिस वाज रियली सरप्राइजिंग। लेकिन अगर हम देखें स्टेटिस्टिक्स पे, तो जो हमारे पास डाटा है वो यही है कि 40 से लेकर 60-70 साल की खवातीन में ज्यादा कॉमन है। जो सर्विकल कैंसर के एस्टिमेट्स हमने लगाए हैं, और जैसे डॉक्टर साहबा बता रही थी कि जी 4 पर 100,000 यानी उससे कम केस लेकर आने हैं, तो हम किस जगह फॉल करते हैं। हमारे यहाँ 6,166 नए केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं, और अगर हम एज स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट लें तो ये 6.1 आ रहा है, जो कि WHO के थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, और मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है। मसला ये है कि जितनी खवातीन में हमारे यहाँ कैंसर डिटेक्ट होता है, उसी हिसाब से उतना ही फ्रीक्वेंट मोर्टेलिटी रेट है, विच इज आई ओपनिंग फॉर अस के हमारे जो हेल्थ के रिसोर्सेज जा रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जब हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी 60% तो गावी का शेयर है, जो कि गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इंटरनेशनल एजेंसी है, जो कि वैक्सीन डिफरेंट कंट्रीज में इंट्रोड्यूस कराती है, तो उसके मुताबिक 60% उनका कंट्रीब्यूशन होगा और 40% कंट्रीब्यूशन होगा जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें आफ्टर 18th अमेंडमेंट हमारे यहाँ सारे प्रोविंसेस फ्री ऑफ हैं कि वो अपने डिसीजंस लें। तो हमें बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है वो सिंध गवर्नमेंट से मिला है, और मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट फ्रॉम सिंध, क्योंकि दे आर रेडी टू एलोकेट द रिसोर्सेज, जिनका 40% शेयर है, और वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस द वैक्सीन। क्यों वैक्सीन हम HPV वैक्सीन लाना चाह रहे हैं? देखें, हर एक में कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स होते हैं किसी भी वैक्सीन में, लेकिन दिस हैज अंटिल नाउ प्रूवन टू बी वेरी सेफ और इफेक्टिव। हम हमेशा कहते होते हैं कि जी ना हमारे मुल्क में क्यों, और डॉक्टर समीना अगर इसको यहाँ इन प्रेजेंटेशन मोड में कंट्रीज कर में, लें, डॉक्टर समीना अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड जी बोर्ड पे जी वो एक्चुअली समहाउ ऑटोमेटिक बहुत स्पीड से आगे जा रही है समहाउ। नहीं ठीक है ठीक है ये ठीक है, आप देख रहे हैं? हाँ मूव कर रहा है, ठीक है, ओके इसलिए मैंने इसको किया। ठीक। जी, तो बहुत सेफ है, और वैक्सीन एफिकेसी 88% से भी ज्यादा है, और 40 मिलियन डेथ्स हम अवॉइड कर सकते हैं, 40 मिलियन अमवात को हम अवॉइड कर सकते हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, अगर हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं। और जाहिर है कि सिर्फ वैक्सीन अकेले नहीं इंट्रोड्यूस करनी, जैसे WHO ने कहा कि 90, 70 और 90 यानी 90% से ज्यादा बच्चियों को जो 14 और 15 साल की एज ग्रुप तक हैं उनमें वैक्सीनेट होनी चाहिए। 70% खवातीन जो हैं, जो कि हमने कहा कि हमारी तो 1% से भी कम एवर स्क्रीनिंग है, तो 70% खवातीन को स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और 90% एंड अबव खवातीन जो कि कैंसर के साथ डायग्नोज होती हैं उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए।
हम ने कमिटमेंट की है जो अभी लॉन्च हुआ था रीजनल सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन स्ट्रेटजी 2023 में इसका लॉन्च हुआ है, और इसमें हमने कहा है कि इस पूरे रीजन में से ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन से हम एलिमिनेट कर दें, यानी ये एक ऐसा कैंसर है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम सोच क्यों रहे हैं, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें तो फौरन ये स्टेप्स लेने चाहिए। हमने इस सिलसिले में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, हमने डिफरेंट माइलस्टोन्स अचीव किए। हमने जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, जुलाई में उनको बिठाया, उनसे कहा कि आप रेकमेंड करें किस एज ग्रुप में होनी चाहिए, कितनी डोजेस होनी चाहिए। इसमें हाई लेवल मिशन भी आया WHO का, हमने मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, हमने अभी 28 नवंबर को मीटिंग कराई और हमने कहा कि सारे प्रोविंसेस को बुला के एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के सो दैट वी गेट द कमिटमेंट कि सारे प्रोविंसेस भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। ये अकेला फेडरल लेवल का डिसीजन ना हो, सब से मीटिंग कराई। फिर हम इस सिलसिले में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है डॉक्टर नौरीन भी इस सिलसिले में काम कर रही हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर का भी डाटा डिटेक्ट कर रही हैं। हमने कोशिश की कि पिछले 3 साल का डाटा, क्योंकि 2020 तक के ग्लोबल कैन के स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल थे, हमने डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की है। मुख्तलिफ गायनी डिपार्टमेंट्स, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सबको हमने टैप किया है। और हमें अभी तक जो रिसीव हुआ है डाटा वो 1194 केसेस पंजाब से, सिंध से 146। इट इज नॉट के सिर्फ यही स्टेटिस्टिक्स हैं। AJK और GB से हमें 255, ICT से 33 और बलूचिस्तान से 48 केसेस मिले हैं। ये अभी वी आर स्टिल इन द प्रोसेस के हमारा डाटा कलेक्ट हो रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि NIH के लेवल पर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री, और उस सिलसिले में हम सारे डाटा उनके पास स्टोर करवा रहे हैं, सो दैट ये एक रेगुलर कल्चर बन जाए, जिस कल्चर में हर साल हर जगह जहां पर कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, और सिर्फ सर्विकल कैंसर नहीं, तमाम गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। लेकिन डेफिनेटली हमने कहा कि ये सिर्फ सर्विकल कैंसर नहीं करता, ये बहुत सारे और हेड एंड नेक और अदर कैंसर्स भी करता है, HPV। लेकिन इसके अलावा भी जितने कैंसर्स हैं वो सारा डाटा हमारे पास मेंटेन हो। हमने बात की कि पाकिस्तान में जो हमारे ग्लोबल कैन के स्टेटिस्टिक्स हैं 5008 केसेस, और हमने कहा कि 73.8 मिलियन, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है कि मोर देन 15 इयर्स पे हैं, और उनमें रिस्क है कि उनको बहुत ज्यादा ये कैंसर होने की चांसेस हैं। जो हमने देखा कि नॉलेज खवातीन में बहुत कम नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हमने इस सिलसिले में देखा कि पार्टिसिपेंट्स का नॉलेज कितना है, और अगर आप देखें ये कराची की एक स्टडी है, और खवातीन को कुछ ना कुछ नॉलेज है कि भाई कैंसर कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, और इन बिटवीन द पीरियड्स ब्लीडिंग हो रही है, ऑफ एंड ऑन हो रही है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, ये वाली चीजें हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ नॉलेज है, और हम इस पे भी देख रहे हैं कि नॉलेज के भी इश्यूज हैं हमारे मुल्क में। कि तकरीबन हम कहते हैं कि 50% जो ये स्टडी बता रही है 2020 की, ऑल्दो कि हमने ऑन द स्पॉट जाके देखा है, तो खवातीन को बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर है सर्विकल कैंसर का। और अगर नहीं बाकी है, तो मेरा ख्याल है कि जैसे आप वेबिनार कर रहे हैं, हम सबको मिलके हम रेडियो कैंपेन्स भी शुरू कर रहे हैं, TV प्रोग्राम्स भी, कि खवातीन को थोड़ी सी अवेयरनेस हो, और वो इस पे करें, जाहिर है कि काम करें। तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दिस रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, और हमारी रिकमेंडेशन जो वैसे तो ऑन द लेबल 2 डोजेस की है, लेकिन ऑफ द लेबल जो 1 डोज का स्केड्यूल है, वो उसको हम फॉलो करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में इशू ये है कि अभी तक हमने देखें, हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, बांग्लादेश ने इंट्रोड्यूस कर दी, हम नेपाल की बात करते हैं, नेपाल ने इंट्रोड्यूस कर दी, और इंडिया ने तो अपनी वैक्सीन बना ली। तो हमारे यहाँ क्या मसला है? हम अगर वैक्सीन बना नहीं रहे, तो एटलीस्ट हमें इंट्रोड्यूस तो करनी चाहिए अपने EPI प्रोग्राम में,
तो हमारा सोल्यूशन यही है कि हम एंडोर्समेंट ले लें सबसे और फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्रोड्यूस करवाएं हमारे नेशनल ईपीआई प्रोग्राम में। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस है, हमने इस स्ट्रेटजी पे काम किया है जो कि सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन स्ट्रेटजी है, और एचपीवी वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना है ताकि नेशनल लेवल पे एक स्ट्रेटजी बन जाए जो कि ट्रिकल डाउन करे सारे प्रोविंसेस में। तो हमने पॉलिसी लेवल पे भी काम किया है। फिर हम चाहते हैं कि कुछ मिथ्स एंड मिसपरसेप्शंस है लोगों की जो कि बहुत ज्यादा होती हैं, और जैसे हम सऊदी अरेबिया की एग्जांपल लें कि उन्होंने एचपीवी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की, तो सऊदी अरेबिया ने जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस की है तो उन्होंने मीडिया पे बहुत अच्छा कंट्रोल करके की है। उन्होंने मीडिया हाउसेस को पहले ब्रीफ किया कि कोई भी ऐसे मिथ्स एंड मिसपरसेप्शंस हैं तो वो पहले डिस्कस करें मिनिस्ट्री के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फिर उनके एप्रीहेंशंस खत्म की। तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन के इश्यूज भी हैं। जैसे मैंने कहा 2018 के बाद हमारी 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी है कि दे डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, और वैक्सीन एक्सपेंसिव है लेकिन डेफिनेटली 60% हमें मिल रहा है। हमें काम करने की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस और मोबिलाइज करना है कम्युनिटी को। फिर मुख्तलिफ हमारे स्ट्रेटेजिक एक्शंस हैं, जैसे हमने कहा कि हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाना है जिसमें नेशनल ईपीआई में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करनी है, कैंसर रजिस्ट्री पे काम करने की जरूरत है, कैंसर स्क्रीनिंग पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, फिर कम्युनिकेशन और पब्लिक आउटरीच पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा एक कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए, कितनी कॉस्ट है उस सिलसिले में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट स्टेजेस पे कितने पेशेंट्स हैं और उन स्टेजेस पे कितनी कॉस्ट आती है, उस पे काम करने की जरूरत है ताकि हम देख सकें कि वो कॉस्ट ज्यादा है या हमें ये वैक्सीन परचेज करने की कॉस्ट ज्यादा है। तो फिर डेफिनेटली अब हम किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि स्कूल बेस्ड हमें करना पड़ेगा यंग बच्चियों में, 9 से 14 साल की बच्चियों में, तो फिर हमारे तो यहाँ तो ज्यादा मेल वैक्सीनेटर है। तो फिर क्या करें, क्या हम LHWs को इन्वॉल्व करें, क्या हम CMWs को इन्वॉल्व करें? ये वो सारी चीजें हैं जिस पे हम डेफिनेटली डिसाइड कर रहे हैं। तो जाहिर है हमारा वे फॉरवर्ड यही है कि सब मिलके एक स्ट्रैटेजी पे काम करें, पॉलिसी जो कि डिफरेंट प्रोविंसेस में भी बनाई जाए और इम्प्लीमेंट करें, MNE प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करें और कोलैबोरेशंस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशंस गई। आई होप कि हमारा ये एक कामयाब मिशन हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। Thank you आपने जो so कुछ much. प्रेजेंट किया माशाल्लाह, वैक्सीन के बारे में बहुत अच्छा वो बोला। और हम आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के लोग एक एग्जांपल सेट करने जा रहे हैं। मेरे तमाम गायनेकोलॉजिस्ट और मैं क्यों बेसिकली पैथोलॉजिस्ट भी हूँ, वो हम एक नए मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये एक एग्जांपल सेट करेंगे कि हमारे यहाँ AJKMC मेडिकल कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आपके साथ कोलैबोरेशन का मकसद भी यही था। डॉक्टर नौरीन जफर और डॉक्टर समीना, आपसे हमारा पिछली दफ़ा मीटिंग भी हुई थी और WHO की मीटिंग हमें हुई थी। तो हम ये वैक्सीन का प्रोग्राम सबसे पहले हम इंशाल्लाह अपने स्कूल की बच्चियों और मेडिकल कॉलेज की बच्चियों पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर से। जैसे फेडरल मिनिस्टर से भी बात हुई और फिर प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई हमारी कि हम आज़ाद कश्मीर में हमें हमेशा जिस तरह हमने कोविड की वैक्सीन सबसे पहले अपने एक एग्जाम्पल है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज से शुरू की, तो इंशाल्लाह हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन भी इससे करेंगे। और इंशाल्लाह इस आपके ताउन से इसको कैंसर को एलिमिनेट करने में न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में भी मदद करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह का डॉक्टर समीना नईम, डॉक्टर नौरीन, और हम आपके साथ हैं। और हम इंशाल्लाह अपने अगले महीने आपको इनवाइट कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको हम एक स्क्रीनिंग सेंटर कायम करेंगे। डॉक्टर शफक हनीफ इस पे काम कर रही हैं और डॉक्टर सीमाब आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद अगला स्पीकर मेरे ख्याल है कमेंट्स हैं डॉक्टर नाबिया तारिक का। उससे पहले मैं देखता हूँ कि बैठी हैं अगर प्रोफेसर जोहरा खानम कनेक्ट ही हो रहा। प्रोफेसर जोहरा खानम इज प्रिंसिपल ऑफ SIMS,
सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक खातून है और इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। डॉक्टर जोहरा खाना, आर यू देयर? ओके, बिफोर दिस डॉक्टर नाबिया तारिक भी हमारी टीम का एक हिस्सा हैं और हमने पिछले साल भी एक वॉक भी की थी और डॉक्टर नाबिया तारिक से मिल के हमने एक वेबिनार भी किया था, एक सेमिनार भी किया था। डॉक्टर नाबिया तारिक मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज में आई हुई थी। तो डॉक्टर नाबिया तारिक, आपका हाथ खड़ा है, कैन यू कमेंट फ्यू थिंग अबाउट, बहुत थोड़े वक्त में क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। जी डॉक्टर जी बिल्कुल। जी Thank you so much. Thank you so much, Professor Mulazim and Samina and all the speakers for enlightening on such an important topic. अब जो challenges हमारे हैं ना, अभी we all know कि भी vaccine भी 2025 में इंशाल्लाह आ जाएगी and challenge ये है कि we should be फरवरी डॉक्टर नाबिया तारिक, फरवरी 2024, 25 नहीं 24 में ये इंट्रोड्यूस हो रही है और हमारा ये इनसे जो मीटिंग हुई थी उसमें मेरा ख्याल है डॉक्टर समीना अभी गवाह तक जो challenges हैं अभी हमारे पास ये कि जैसे डॉक्टर समीना ने भी कहा कि huge vaccination is required, huge amount of vaccination is required for which we need to have proper resources as well. गवर्नमेंट ऑफ सिंध की उन्होंने बात की कि they are ready, लेकिन जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा how many people will be ready to spend their budget on vaccination, ये भी थोड़ा सा एक चैलेंज है। दूसरी चीज ये कि whenever we run these program, हमें इंटरनेशनल डोनर्स की भी जरूरत होती है। ठीक है, इंटरनेशनल डोनर्स के लिए आपको बहुत अच्छी अपनी कैंसर रजिस्ट्री शो करनी होती है। कैंसर रजिस्ट्री का हाल डॉक्टर समीना ने भी बताया कि ये आगा खान के पास है। उसके अलावा जहाँ पे भी वी आर डीलिंग विद कैंसर पेशेंट्स, रजिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, पहली चीज इस पे हमें काम करने की जरूरत है जो कि इमीडिएट है। नंबर 1 हमने पहले बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करना है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन की एग्जांपल मौजूद है। आप टेलीफोन कॉल मिलाते हैं तो आपको मैसेज मिल जाता है। हमें सोशल मीडिया को फुली अवेल करना है इन स्प्रेडिंग दिस मैसेज के why we are doing vaccination, why screening is important, और उसके बाद अर्ली मैनेजमेंट ऑफ सर्विकल कैंसर को, इन तीनों मैसेजेस को हमें हर किसी तरह लेवल पे प्रोपेगेट करना है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि हेल्थ डिपार्टमेंट में CMW, लेडी हेल्थ विजिटर्स, डॉक्टर्स, all the workforce has to be involved in raising community awareness and in helping out अर्ली स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें सारी वर्कफोर्स यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए वी नीड टू हैव SOGP ऑन बोर्ड। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल है, उनके लोगों के साथ सेंट्रलाइज्ड ऊपर से अगर हम उनको इन्वॉल्व करें, ऑल द स्टेक होल्डर्स, फिर हर कोई अपनी जिम्मेदारी पे जो कि पीपल आर लिंक्ड विद देम उनको इन्वॉल्व करें। नंबर 2। नंबर 3 ये कि आपका जो schools and university level पे we need to raise a lot of awareness regarding uptake of vaccine, कि जब वैक्सीन आएगी बच्चियों को, जो पिछली वैक्सीन हमारी आई थी 2012 के अराउंड, आई रिमेम्बर कि वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल थी, लेकिन देयर वाज सच अ लो अपटेक ऑफ वैक्सीन कि वो फिर उनकी जाया हो गई और द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू हैव दैट वैक्सीन अवेलेबल इन पाकिस्तान ऑन प्राइवेट सेक्टर। तो अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर पे हम मंगवा लेते हैं वैक्सीन, तो वी नीड टू रेज दिस अवेयरनेस कैंपेन थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, थ्रू हेल्थ सेक्टर, कि भाई ये वैक्सीन, जैसे पहले स्पीकर्स कह चुके हैं कि इस प्रूवन सेफ्टी भी है, इसकी एफिकेसी भी है और इस पे काम करने की जरूरत है। तो वी ऑल नीड टू जॉइन हैंड्स टुगेदर इन रेजिंग अवेयरनेस एंड इन हेल्पिंग इन अर्ली डिटेक्शन, and last but not the least in maintaining a good cancer registry center। और कैंसर रजिस्ट्री का मसला ये है ना कि शौकत खानम में तो चले एक सिस्टम अवेलेबल है, बाकी जगहों पे जहाँ पे सिस्टम अवेलेबल है वहां पे भी सर्विकल कैंसर का डाटा आपको नहीं मिलता। अगर 10 कंसल्टेंट एक अस्पताल में गायनी में काम कर रहे हैं, वो टोटली डिफरेंट उस पे होंगे और आपके पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट अलग अलग अपने अपने डब्बे में काम कर रहे होते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वी शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर इन मेंटेनिंग अ गुड कैंसर रजिस्ट्री डाटा विच विल हेल्प अस इन गेटिंग मोर डोनेशंस फ्रॉम इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज। और हर कोई पहली बात करता है कि जी व्हाट इज योर स्टैटिस्टिक्स, तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाबिया तारिक, प्रोफेसर नाबिया तारिक, आपकी गुफ्तगू और आपकी तजावीज़। और मेरे ख्याल है डॉक्टर सीमाब जफ़र ने ये सारी लिख रही होंगी, हमारी जो प्रोफेसर, हमारी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट गैनी है। हम इन पे काम भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़फ़्फ़राबाद में हम इसको एक एग्जांपल भी देंगे। नो डाउट वी कैन नॉट, हम ये नहीं कर सकते कैंसर रजिस्ट्री, लेकिन हम जो डाटा अपने कश्मीर के लेवल पे डेवलप करेंगे, ये हमारे नौजवान ख़वातीन, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे प्रोफेसर ऑफ गायनीस ये सब करेंगे। एक बात, इस दूसरी पे बात एक चीज और आपकी थी, बात, एक दूसरी चीज और बात, हमने जो डिस्कस की लास्ट, हमारी जो लास्ट वीक डब्ल्यूएचओ और इनके साथ एचएसए के साथ मीटिंग थी, उसमें ये था कि आपने, एचएसए ने शायद कोई ऐप भी डेवलप की, लेकिन उसके लिए भी, ऐप के लिए भी यू नीड टू हैव वाईफाई, और उसके लिए अगर आप कम्युनिटी मिडवाइफ्स और एलएचडब्ल्यूएस पे डिपेंड करें, वो ऐप को भी नहीं एक्सेस कर सकते। अगर हम सिंपल कोई व्हाट्सएप नंबर ही हर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप मेन सेंट्रल पॉइंट है, अगर आजाद कश्मीर में कोई है तो कोई व्हाट्सएप नंबर ही हो जिसपे पेशेंट का एटलीस्ट नाम, उम्र और डायग्नोसिस पता चल जाए ना, तो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू मेंटेन दिस डाटा। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल इस सिलसिले में हमने एक काम और भी किया है कि हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज में जो टेलीमेडिसिन का सेंटर था, हम उसको हम एम्स में शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, ये सारा इंशाल्लाह उसके अंदर बैठ के डाटा डेवलप करेंगे। और बिफोर दिस कि मैं स्टार्ट करूं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अगर किसी और गायनेकोलॉजिस्ट ने कोई कमेंट देना हो तो ठीक, मेरा ख्याल है डॉक्टर जोरा खानम आ गई हैं। डॉक्टर जोरा खानम नहीं कांटेक्ट कर सकी। प्रोफेसर, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि निज़ामी साहब भी मौजूद हैं। मैं निज़ामी साहब को आखिर में इनवाइट करूँगा, क्योंकि हम ये मिल के वेबिनार करते हैं, हमारी एक अवेयरनेस होती है प्रोफेसर सलमा कोंदी के साथ मिल के PMA के प्लेटफॉर्म पे, कि हम ये अवेयरनेस क्रिएट करें, जिस तरह कोविड के अंदर हम इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट किया, आगे भी हम चलेंगे। जी डॉक्टर नाबिया तारिक, आपने हाथ खड़ा किया दोबारा। डॉक्टर नाबिया तारिक, आप कुछ कहना चाहेंगी? ओके। जी डॉक्टर ज़मीर हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर हुसैन, ये PhD डॉक्टर हैं, प्रोफेसर रहे, एजुकेशनिस्ट हैं। ये सवाल पूछ, डॉक्टर ज़मीर हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम ज़मीरुल अंकल। हसन नकवी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी अंकल। जी मैं जी उनकी छोटी बेटी बात कर रही हूँ, कुलसुम नकवी। बाबा ने मुझे ये सेशन दे दिया था क्योंकि ये वुमेन्स के ओके। लिए था। तो जी आई हैव बेटा, अ आप क्वेश्चन। जी सवाल करें। आई हैव अ क्वेश्चन एज आई एम अ student of bachelor's, so my question might seem a little silly, so please bear with me. I will really appreciate it. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादातर अवेयरनेस नहीं है इस कैंसर के बारे में। एज इन ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस थी, एंड हमारी काफी ज्यादा स्प्रेड भी हुई थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और उस लेवल पे आके हमें अवेयरनेस दी गई है। अब इस कैंसर का इट्स माय फर्स्ट टाइम हियरिंग अबाउट इट। तो आप कोई अगर हमें टिप्स दे दें दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज सिम्टम्स, कि हमें ये सिम्टम्स शो हो तो हम लोग डॉक्टर को जाके चेक करवाएं, और हमें कोई प्रिकॉशंस दे दें कि हमें क्या चीजें अवॉइड करनी है टू लाइक अवॉइड दिस कैंसर इफ देयर इज एनी। जी डॉक्टर शफक, आपका सवाल का जवाब दें। शफक का नहीं एंड किया। थर्ड जी क्वेश्चन ये है कि आप लोग कह रहे हैं 15 एज से हम लोग वैक्सीनेशन दे सकते हैं, तो एज पर अ पर्सन हु इज इन हर अर्ली 20s, क्या उनको भी वैक्सीनेशन हो सकती है? जी डॉक्टर शफक। अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस आपने किए हैं। एक पहला क्वेश्चन तो का आंसर ये है बेटा कि जो वैक्सीनेशन है वो बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट है और इन यंग एज है, और ये यंग एजेस में दी जा रही है यानी शादी फ्रॉम से पहले, 9 इयर्स आपका टू मतलब है शादी से पहले। हाँ। हाँ जी, या 9 टू 14 इयर्स ऑफ एज पे ये वैक्सीनेशन प्रोमोट की जा रही है। और इसमें ये सिम्टम्स या जो है ना डिजीज एक्वायर करने के बाद नहीं है, उससे पहले वैक्सीनेशन करानी है। एक ये बात है। दूसरा आपने कहा कि अवेयरनेस जो है वो नहीं है, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस थी लोगों में वो की, तो यही बात अभी डॉक्टर नाबिया तारिक ने और कुछ और स्पीकर्स ने भी बताया कि मैंने भी बल्कि शुरू में जब ओवरव्यू दिया तो उसमें यही एम्फसाइज किया था एंड में कि हमें स्कूल गर्ल्स जो है ना और कॉलेज गर्ल्स और मास मीडिया और गवर्नमेंट्स और इन सब के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है।
कि बिफोर जो है वो बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, स्टार्टिंग ऑफ एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, ये वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए। ये आपका था। और तीसरा था आपका कि हाउ टू मतलब कौन से सिम्टम्स हैं जिनमें जो है वो ये आपने ज़रूर एक्सेस करनी है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो उसमें इसके सिंपल जो शुरू के बहुत ज़्यादा शुरू में जो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में आते हैं, जो हैं वो वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो रिकरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज है, और इसके बाद एसटीआईज़ की दूसरी सिम्पटोमोलॉजी भी आ जाती है। और थोड़े से और लीन एडवांस हो तो पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग और या इर्रेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग स्पॉटिंग की सूरत में, या इंटरमिटेंट थोड़ी हैवी ब्लीडिंग की सूरत में वो प्रेज़ेंट कर सकती है। तो मैंने अपने शुरू के उसमें ये एम्फसाइज़ किया था कि जब भी कोई इस किस्म के सिम्पटम्स जो है वो पेशेंट लेके आए, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को सर्विक्स ज़रूर देख लेना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस में ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी पेरिफेरी में या कहीं भी कोई डॉक्टर्स हैं या एलएचवीज़ हैं, या वो सर्विक्स को देखते ही नहीं है, बस मरीज़ की कहानी सुनते हैं, दवाइयाँ दे के भेज देते हैं। तो यही चीज़ है कि वो देख ज़रूर लें और उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर लें। ये तो मेरा हाल, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। कोई रह गया तो मुझे बता दीजिए बेटा। इसमें डॉक्टर शफक बड़ी खूबसूरत बात है कि बात यह है कि ये जो बीमारी है, ये कैंसर है, ये गैर शादीशुदा खवातीन को नहीं होती, ये पक्की बात है, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। इसलिए गैर शादीशुदा बच्चे या जो बिफोर एज हैं, बिफोर सेक्सुअल कांटेक्ट हैं, उनमें ये नहीं होता, इसलिए प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर समीना नईम, आप ये बता सकती हैं कि आप 14 साल तक क्यों रिकमेंड कर रही हैं? 14 साल तक का क्या फलसफा है? क्योंकि वैसे तो ये कहते हैं सेक्सुअली एक्टिव उससे पहले देनी चाहिए। डॉक्टर समीना नईम। जी जी जी, एक्चुअली ये है कि मोर देन 90% एफिकेसी है जितनी अर्ली एज में। अगर आप देखें तो यंग एज में इम्यूनिटी डेवलप करने की सलाहियत ज्यादा होती है। अमूमन हम वैक्सीन बच्चों में दे रहे होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि हमारी बहुत मतलब बिफोर द एक्सपोजर टू द वायरस हम जितनी जल्दी इम्यूनिटी डेवलप कर लें उतना ज्यादा बेहतर होता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि 20 साल की एज तक क्या दी जा सकती है, डेफिनेटली दी जा सकती है। और अगर स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है फिर तो दी जा सकती है। लेकिन अगर है एक्टिविटी तो जाहिर है बेहतर ये है कि पहले स्क्रीनिंग करा लें और फिर डिसाइड करें। लेकिन जितना हम 14-15 की एज से क्रॉस कर जाते हैं तो वो एफिकेसी अगर हम 20s में देखें तो 67% है, और अगर हम उससे ऊपर लाइक 30s में अगर वैक्सीन की गई तो उसकी 40s में एफिकेसी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यंग एज में मोर देन 94% उसकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। इसलिए जितना जल्दी हम ये वैक्सीन दे देंगे उतना अच्छी इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन ये है कि अभी हमने स्टार्ट इसलिए किया है कि बच्चियों को दें, क्योंकि हम लोग तो 0 पे है ना। तो कुछ कंट्रीज में मल्टी एज कोहॉर्ट्स भी स्टार्ट किए गए हैं। उसका मकसद ये है कि कुछ तो जाहिर है बच्चियां जिन तक हमारी एक्सेस होगी उन बच्चियों को वैक्सीन दे दी, कुछ जो 20s में हैं और अभी शादी नहीं हुई उनको वैक्सीन दे दी, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस पॉपुलेशन में। तो इंशाल्लाह एक दफा हम इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज वेरी ट्रिकी कि हमने इंट्रोड्यूस करना है और हमारी पॉपुलेशन में। आपने बिल्कुल सही कहा, जो अभी वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस आप लोगों ने करा दी, और अक्टूबर के महीने में जब हम कराते हैं तो हमारे हॉस्पिटल्स के स्क्रीनिंग सेंटर्स भर जाते हैं, इतनी खवातीन में अवेयरनेस है। लेकिन अभी हम सर्विकल कैंसर पे बात करना बहुत ट्रिकी है। मुझे याद है जब हमने स्टार्ट के प्रोग्राम्स किए थे ब्रेस्ट कैंसर के, तो छाती का लफ्ज यूज करना बहुत हमें मना करते थे कि ध्यान से यूज करें, ये सोच समझ के यूज करें। तो अब आप देखें कि सर्विकल कैंसर जो है वो बच्चेदानी के मुंह का है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा रिलेशनशिप सेक्सुअल एक्टिविटी और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ है। तो वो हमें बहुत ही ध्यान से ये प्रोग्राम्स करने होंगे। जी डॉक्टर समीना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता जब क्रिएट करेंगे ना हम और लोगों को बताएंगे। आपको मालूम है कि जब ये वैक्सीनेशन शुरू में आई थी तो लोगों ने, मैं छोटा सा था तो मेरे ख्याल 8वीं जमात में थी, तो ये स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की वैक्सीन थी। तो उसमें मेरे 7वीं जमात में या 8वीं जमात में पढ़ता था, तो वैक्सीन करने के लिए जो आए
स्कूलों में तो ये मशहूर हो गया कि ये जो बच्चा लगवाएगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा। तो मेरी क्लास में टोटल 11 बच्चे थे, तो हम 2 रह गए और 9 बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, उनके बस्ते आज भी वहां पड़े हैं। तो ये मिथ बड़ा पाकिस्तान में क्रिएट होता है। इस तरह कोविड की वैक्सीन भी थी, ह्यूमन पैपिलो, इसकी बहुत खूबसूरत आज की समरी ये है कि हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज की टीम, डॉक्टर नौरीन जफर ने बहुत खूबसूरत एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के साथ हम अवेयरनेस के साथ आगे चल रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारे ये नौजवान खवातीन, ये डॉक्टर्स, ये कंसल्टेंट, डोर टू डोर भी इनको जाना पड़ा, तो इंशाल्लाह ये इस अवेयरनेस का हिस्सा बनाएंगे। और उम्मीद है कि WHO हमारे साथ तावन करेगा और पाकिस्तान के दूसरे सूबे भी इस तरह की एग्जाम्पल पुट करेंगे। जी डॉक्टर नाबिया जफर तारिक, आप कुछ कहना चाहती हैं? डॉक्टर नाबिया जफर। ओके, इफ देयर इज ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन। जी बेटा, आपने एक सवाल आप पूछा है, पूछे सवाल। अंकल, मतलब आप लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो लाइक आप मुझे मुल्तान के किसी वैक्सीनेशन सेंटर के बारे नहीं, में बता अभी सकते हैं? वैक्सीनेशन सेंटर नहीं बने। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, हर सूबे के अंदर होगा। ये तो WHO वाले सारे बता सकते हैं कि वैक्सीन के सेंटर कहाँ होंगे। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं सिर्फ मुजफ्फराबाद की हद तक ही कह सकता हूँ। डॉक्टर समीना, आप कह सकेंगे कुछ और वैक्सीनेशन? सर, I am a student of psychology, BS Psychology, third semester from Bauddin Zakaria University, Multan. ओके, So I would really like to spread awareness about it because गुड, ये चीज. So if I can be any kind of help, please approach me through my father and do let me know. I would be glad to help. Like एक्सीलेंट, and एक्सीलेंट in my class after my winter vacation, I will give a thorough call about it. एक्सीलेंट। ये देखे ना, वेबिनार का डॉक्टर समीना ये एक मोटिवेशन हुआ चाहिए। हमें, एक जी नौजवान हमारे लिए तैयार हो गए। जी डॉक्टर समीना, आप जी बताएंगे जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन सेंटर के यही बारे में? मोटिवेशन चाहिए हमें। जी जी, वैक्सीनेशन सेंटर्स तो जो गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हम उन पे प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। यानी आपको कहीं अलग से इसके लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपको जो गवर्नमेंट का EPI प्रोग्राम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है, उसी के अंदर हम ये एक और वैक्सीन ऐड करा देंगे, जैसे हमने बाकी टाइफाइड की कराई और इस तरह। तो जो हमारा रूटीन का इम्यूनाइजेशन है उसके अंदर हम ऐड कराएंगे, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। पहले हमारी मार्केट में अवेलेबल थी प्राइवेट तौर पर, लेकिन लोग बहुत ज्यादा गायनोकोलॉजिस्ट ने लिखी नहीं, अगर लिखी तो लोगों ने लगवाई नहीं, जिसकी वजह से वो ओवर द शेल्फ जो है एक्सपायर हो गई। तो फिर कंपनीज ने मंगवानी छोड़ दी। तो अब हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल नहीं है फ्रीली, लेकिन डेफिनेटली अब हम गवर्नमेंट के EPI प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करा देंगे। हमारी कोशिश तो है कि हम जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस कराएं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो नेशनल स्ट्रैटेजी है जो हमने बनाई है, उसके एक्शन प्लान्स एक्सेप्ट हो जाए सारे प्रोविंसेस में, तो इंशाल्लाह के वो आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। Ma'am, how तो would थैंक यू I फॉर द be मोटिवेशन। able, ma'am, how would I be able to know कि ये वैक्सीन आ चुकी है, क्योंकि इसके बारे में कोई जी भी जी, ओपनली बात नहीं करना। और मैम सेकंड ये नहीं चीज है नहीं, हम कि बहुत ओपनली बात करेंगे हम। मतलब इट डिपेंड्स के प्रोविंसेस देखें। अभी हम फेडरल लेवल पे बैठे हुए, अगर हम अभी से ही इम्पोज करेंगे तो प्रोविंसेस जो हैं उनमें एक्सेप्टेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। हम प्रोविंसेस को ऑन लेकर फिर से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, यानी इंस्टेड के दिस इज आवर डिसीजन, इट शुड बी एवरीबॉडीज डिसीजन। वी वांट द कम्युनिटी, जैसे आप लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये आप कहें कि वैक्सीन लेकर आए, ताकि आपकी ओनरशिप हो। हम जब लेकर आए तो आप कहें कि ये तो हमने खुद मंगवाई है, तो अब तो हमने लगवानी है। तो हम बस उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और उसके लिए हम सारे मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर मुलाजिम साहब, डॉक्टर सीमा आप, डॉक्टर नौशीना, डॉक्टर नौरीन जफर, ये सब मिलके हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर शफक ने बताया, इन सब का मकसद यही है कि ये अवेयरनेस हर लेवल तक चली जाए। और जैसे इन्होंने कहा कि उर्दू में बात करें, ताकि अगर हम ये वेबिनार जाहिर है अवेलेबल टू द कॉमन पीपल तो हो, तो फिर सबको इसका नॉलेज हो और हर कोई लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि जाहिर है हमारे अपने बच्चे भी हैं। देयर वाज अ टाइम कि हमें
जो बड़ी बेटी है उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी, छोटी बेटी के टाइम पे अवेयरनेस आई और हमने वैक्सीन ढूंढना शुरू की। तो फिर हमें पता चला कि वैक्सीन के क्या इश्यूज हैं और हमारी कम्युनिटी में क्या उसमें समीना एक चीज और भी है ना कि हमने वाकई ये बात, बच्ची अगर पूछ रही है, शी इज वेल एजुकेटेड लेकिन दे डोंट हैव एनी अवेयरनेस, तो हमें इमीडिएट कम्युनिटी अवेयरनेस एंड लिंकिंग दिस प्रोग्राम टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बहुत अर्जेंट जरूरत है। तीसरी चीज ये कि एटलीस्ट मुजफ्फराबाद के लेवल पे या आजाद कश्मीर के लेवल पे कम्युनिटी मिडवाइफ्स को ट्रेन करना है हमने इस चीज पे ऊपर के लो रिसोर्स सेटिंग में हाउ टू स्क्रीन सर्विकल कैंसर, जिसमें कि एसिटो वाइटनेस चेक करनी होती है, वो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। तो अगर ये भी हम प्रॉपर अभी से स्टार्ट करें कि कम्युनिटी मिडवाइफ्स को और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स को ट्रेन करना शुरू करें हाउ टू स्क्रीन द सर्विकल कैंसर। थैंक यू सो मच। हाँ, वो हम लोग अपने जो हमारे जी सेंटर में कम्युनिटी मिडवाइफ्स और ये सब हो रही हैं, क्योंकि हम लोग ये कर रहे हैं स्क्रीनिंग मुख्तलिफ पेशेंट्स पे, तो हम उन्हें सिखाते हैं अपने पैरामेडिकल स्टाफ को। लेकिन ऑब्वियसली एक मतलब वाइड ब्रॉड रेंज में होना चाहिए, और कश्मीर के पूरे प्रोविंसेस में और मुजफ्फराबाद की भी पूरी जगहों पे ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को सिंपल स्क्रीनिंग सिखानी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वायाबिली बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और जो कोई सर्विक्स देख सकता है, परफेक्युलम कर सकता है, वो आराम से ये स्क्रीनिंग कर सकता है। जी, एक और चीज मैं डॉक्टर नबिया हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिटी अवेयरनेस कराने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि ये बच्ची तो एजुकेटेड है और इसने बहुत जल्दी परसीव कर लिया, इसने कहा कि ये तो बहुत जरूरी है, और इवन दो कि 20 की एज तक पहुंचे हुए हैं तो क्या ये करा सकते हैं कि नहीं। लेकिन मैं कराची गई डॉ मेडिकल कॉलेज, और डॉ के हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी, मल्टीपल रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साइकिल्स करा चुकी थी, और उनकी बेटी साथ बैठी हुई थी। तो माँ को सर्विकल कैंसर की वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ का सामना था, तो मैंने बेटी से कहा कि बेटा हम चाहते हैं कि ये वैक्सीन लगवाएं, तो आपको अगर मैं वैक्सीन लगाऊं तो मैं लगा दूं। तो वो कहती है कि मैं इतना बड़ा अपनी जिंदगी का डिसीजन कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन लगाने का खुद से तो नहीं कर सकती, मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे तो मैं फिर लगवाऊंगी। तो मैंने कहा आपकी मदर वहां सर्विकल कैंसर की वजह से इतनी मिजरेबल कंडीशन में है, और अभी भी आप कह रही हैं कि मैं मशवरा करूंगी, और मैं तो वो इतनी मुझे हैरत हुई। और उसकी मदर से मैंने कहा भाई अपनी बेटी को बताएं आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं, तो उसने कहा कि डेफिनेटली इसको लगवानी चाहिए। लेकिन जितना हम समझते हैं कि सिंपल है, इतना सिंपल है नहीं, इट्स वेरी ट्रिकी। क्योंकि ये मैंने कहा ना, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी तो वो हमारे यहाँ बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाता है। तो लेट्स होप इंशाल्लाह अच्छा हो। प्रोफेसर साहब मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। एक बात तो ये कि हमें जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन की कॉनोटेशन है ना, ये हमें हटानी पड़ेगी एचपीवी से, अगर हम अपने बुजुर्गों में और बच्चियों में और कम्युनिटी में ये बात खुली करना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना काफ़ी है कि एचपीवी एक ऐसा कैंसर है, जो ऐसा वायरस है जो बहुत से कैंसर कॉज करता है, खवातीन में भी बच्चियों में भी, और अभी हम बच्चियों में शुरू कर रहे हैं इसकी वैक्सीनेशन। आहिस्ता आहिस्ता हम बॉयज में भी इसको लेके आएंगे। और दूसरा मैंने ये कहना था कि ये जो आप लोग प्रोग्राम इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड और वो कम्युनिटी मिडवाइव्स एलएचवीज उन सब के लिए बहुत यूजफुल होगा। मैं सीमाब से कांटेक्ट करके तो आई विल सेंड अ कपल ऑफ कॉपीज इफ पॉसिबल, इफ नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज, तो वो आप लोग प्लीज यूज करें। इट विल हेल्प यू टू ट्रेन मिड लेवल प्रोवाइडर्स इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। ओके डॉक्टर नूरीन, हम वेट जी, डॉक्टर करेंगे सफीना, इंशाल्लाह, आप जरूर भेजें। डॉक्टर सफीना का सवाल है। जी मैडम। Thank you so much for such a informative session and raising voice against the cervical cancer. जैसे मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर से हूँ और आई एम Excellent. वर्किंग एज द डायरेक्टर वुमेन हेल्थ हियर, एंड वी हैव more than 50,000 of the female population here, जिनकी एज more than 17 से लेके 60 years of age है। और हमारा एक नया डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन हेल्थ केयर सेंटर एंड मैटरनिटी होम यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है रिसेंटली।
जिसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस सेशंस और इनके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स विद बीनो हॉस्पिटल के साथ हमने अरेंज किए हैं। और इसी तरह से मैं भी यही चाहूंगी कि हमारी जो बच्चियां हैं उनकी वैक्सीनेशन हो जाए। और ये बहुत बड़ा एक हमारा इशू है कि जब हम सेक्स के ऊपर बात करते हैं तो कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करेगा। जिस तरह से अभी एक डॉक्टर साहिबा ने बात की कि हमें इसको थोड़ा सा हटाना चाहिए इस वर्ड को, क्योंकि सेक्सुअली हमारे जो यहाँ पे ट्रांसमिटेड लफ्ज को हटाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ब्रेस्ट को लेके बात नहीं करना चाहते, छाती का अब तो बहुत कॉमन हो गया ये कॉमन बात हो गया। कि जी जी, जिस तरह से अभी हमारे ड्रग्स के ऊपर बात हो रही थी, हम इसमें सेशंस, हम लोग बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं रिसेंटली हमारी यूनिवर्सिटी ने। इसी तरह से मैं ये चाहूंगी कि हमारे सर्वाइकल कैंसर को हम भी इसमें कोलैबोरेशन में काम करें at or not only the medical colleges, not only the schools, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इस तरह का एक मैस टाइप ऑफ हम कोलैबोरेट करके काम करें। पहले स्टेक होल्डर्स कुछ मीटिंग्स करें और इसका पूरा एक चॉक आउट हो प्लान, किस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज करें, इसमें नर्सिंग एवरी कोलैबोरेटर्स काम करें। तो मेरा भी ये था कि एज अ वुमेन हेल्थ केयर बिल्कुल सेंटर डॉक्टर की सफीना, आपने बहुत अच्छा किया। खवातीन का कैंसर है तो खवातीन को अपनी हम जिन्स को बचाना चाहिए और इसके लिए खवातीन को ही आगे आना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी अगर खवातीन इस्तेमाल करेंगी तो मेरा ख्याल है ये ब्रेस्ट कैंसर और छाती का कैंसर और ये सर्वाइकल कैंसर हम बिल्कुल इससे अपने मुल्क को पाक कर लेंगे। और यकीनन ये जो सर्वाइकल कैंसर है, जिस तरह मेरे मुअज़्ज़िज़ स्पीकर्स ने कहा कि ये वाकई काबिले इसको प्रिवेंटेबल है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आखिर में डॉक्टर शफक हनीफ से गुजारिश करूंगा कि आज के इस वेबिनार को, आज बहुत अच्छी बातें मिली हमें, एक कम्युनिटी ट्रेनिंग का मिला और बच्ची ये ने बड़ा अच्छा किया, साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। और एक डॉक्टर सफीना ने भी, ये भी मेरा ख्याल है उसके ताल्लुक है, डॉक्टर सफीना बहावलपुर से ताल्लुक रखती हैं, मेरे घर से, मेरे गांव से, मेरे इलाके से। तो बहुत अच्छी मैसेजेस मिले। डॉक्टर शफक हनीफ आज के प्रोग्राम को कंक्लूड कर दीजिएगा, डॉक्टर शफक हनीफ। एंड सबका शुक्रिया डॉक्टर सिमाब, आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर नौशीना आपका भी शुक्रिया, और मेरा ख्याल है मरियम ज़ुबैर नहीं पहुंची, रास्ते में थी, और डॉक्टर समीना आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर नौरीन आपका भी शुक्रिया। लेकिन आपका तावन हमें दरकार रहेगा। और डॉक्टर शफक हनीफ एक बेहतरीन लीडर है और इंशाल्लाह इनको आगे ले चलेंगी। जब तक मैं हूँ तो मैं इनके साथ हूँ, इंशाल्लाह में क्षमा जला जाएंगे। डॉक्टर शफक हनीफ, ओवर टू यू। शुक्रिया सर आपका, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं सिर्फ 2-3 जुमलों में इसको कंक्लूड करती हूँ। आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा। हमारा मकसद इसका ये था कि हम अवेयरनेस के ऊपर जोर दें कि हमें कम्युनिटी में अवेयरनेस अबाउट द सर्वाइकल कैंसर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसका है कि ये प्रिवेंटेबल है। ये कैंसर वो कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है, उसके ऊपर हम जोर दे सकें। और ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं इम्पोर्टेंट, एक ये एचपीवी वैक्सीन की अवेयरनेस, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी स्ट्रेटजीज की वो किस तरह इम्प्लीमेंट की जाएगी कम्युनिटी में। और दूसरा चीज ये कि स्क्रीनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह एसओजीपी के फोरम पे हमारी जो नेशनल गाइडलाइंस प्रिपेयर हुई हैं इसके लिए, वो बिल्कुल इकोनॉमिकल भी हैं और डुएबल भी हैं कि उनको फॉलो करना हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और उनको फॉलो करने के लिए हमें अपने साथ के जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, सीएमडब्ल्यूज हैं, इन सबको ज़रूरी ट्रेनिंग जो दे सकते हैं वो हमें ज़रूर देनी चाहिए। अगेन थैंक यू वेरी मच, हर एक का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे शफक स्पीकर्स एक ने सवाल बहुत आ तावन गया, दिया। डॉक्टर शफक एक सवाल आ गया, सईदा बानो। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सईदा बानो है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में। माशाल्लाह। और जो है ना डॉक्टर नौरीन जफर से तो हमारा ताल्लुक है, मैडम तो हमारे पास भी आई थी और इन्होंने सेफ अबॉर्शन केयर के हवाले से, पोस्ट अबॉर्शन केयर के हवाले से हमें यहाँ साहिवाल में वर्कशॉप कराई थी। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा हर वक्त फिक्रमंद रहती हूँ
और मुझे ये होता है कि जो सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, हमारी सारी गायनेकोलॉजिस्ट अगर उन सारे मरीजों का पैप स्मीयर ले लें या विया ले लें, विया एक टेस्ट है, विनाइल डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड जो है ना, वो अगर हम अप्लाई करते हैं सर्विक्स पे, तो अगर एबनॉर्मल एरियाज हैं तो कम से कम उन पेशेंट्स का या तो पैप स्मीयर ले लें या उनको आगे से देख लें। अगर हम पैप स्मीयर नहीं कर सकते तो ये जरूर होना चाहिए। और जब कोविड हो रहा था, कोविड के दिनों में जो वैक्सीनेशन के लिए एक बहुत बड़ी सी वैन चलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत बड़ा सा ट्रॉला टाइप, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल की ही कह दें, मोबाइल क्लिनिक की, उसमें मरीजों को वैक्सीनेशन करते थे, उनके टेस्ट करते थे। तो आई विश कि कभी हमारे पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का मोबाइल क्लिनिक चले जिसमें खवातीन की हम स्क्रीनिंग करें और उनको हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताएं। तो आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये मोबाइल क्लिनिक्स अगर शुरू हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए, हम अपने जो है वो सूबाई लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे ऐसे कहें, अगर मोबाइल क्लिनिक्स चल पड़े और हम खवातीन के पैप स्मीयर कर लें, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। बस मैं ये सईदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कमेंट दिया। और डॉक्टर शीना का एक बहुत अच्छा कमेंट आया कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल काउंसलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को कामयाब कर सकेंगे। डॉक्टर सिमाब जफर, आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करें, ख़त्म करें। जी सर, आज का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेमिनार रहा है। इसमें हमें एटलीस्ट ये डेफिशिएंसीज पॉइंट आउट हो गई हैं कि हम लोग जो हैं पाकिस्तान में अभी हर लिहाज से काफ़ी पीछे हैं। अगर हम अवेयरनेस से स्टार्ट करें, स्क्रीनिंग, इसकी पीआई वैक्सीनेशन के स्केड्यूल में वैक्सीन को इंक्लूड करना, तो हमें इस फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है कि हमने अभी स्क्रीनिंग अपने सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हैं, डेटा कलेक्ट करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो अपनी आवाम को अवेयर करना है इस कैंसर के बारे में। तो अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंपेन्स और मीडिया की इन्वॉल्वमेंट और डिफरेंट तरीकों से पहले तो अवेयरनेस होगी, तो फिर इस वैक्सीनेशन की सक्सेस जो है उसके अकॉर्डिंगली होगी। Thank you so much. Allah Hafiz. See you next Sunday in a new webinar. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thanks to all. सबका शुक्रिया। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. ये सलाम कर देना।